ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور آنکھیں بند ہو گئی، حضور اپنی ماں کو ہلا کے، امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے، معصوم جذبات، امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں میرا ایمان ہے۔ خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا۔ اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی، اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی۔ جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے، ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے، تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا۔ ام ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی۔ شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دی اور مٹی برابر کر دی۔ ام ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے چلو مکے چلنا ہے۔ حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ام ایمن میری امی، ام ایمن میری امی۔ ام ایمن نے کہا شہزادے مقام ابوا میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے۔ جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری، حضور نے ہاتھ چھڑا دیا۔ ام ایمن کہتی حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے۔ میں ڈھونڈنے لگی، کہیں نہیں ملے۔ جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی۔ جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے، میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے، تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی، باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی۔ رو رہے تھے حضور علیہ السلام۔ ام ایمن کہتی میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے، یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی۔ حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دیکھتے۔ یہ ماں ہے۔ آج جن ماؤں کی قدر آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے، ماں ہے۔ پتہ نہیں ام ایمن نے کس طریقے سے حضور کے آنسوؤں کو خشک کیا، چپ کرایا، کیسے تسلی دی، کیسے حوصلہ دیا، کیسے ہمت دی، یہ ام ایمن جانے، حضور جانے۔ حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوہ گر ہیں، صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ حضور علیہ السلام خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے۔ جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دوڑ پڑے حضور کی طرف، کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گرا تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے نا، بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ کھیلتے رہو واٹس ایپ، دیکھتے رہو فلمیں، رات کے 3 بجے تک فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے رہو، دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو۔ جس دن تمہاری ماں کا چہرہ کفن میں چھپ جائے گا، اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے۔
दुनिया की हर नेमत खो करके तुम्हें वापस मिल सकती है, लेकिन माँ बाप उस नेमत को कहते हैं जो एक बार खो जाए फिर वापस वो नेमत नहीं मिलती। उस नामुराद के दिल से जाकर के पूछो जिसके माँ बाप नहीं है और उन्होंने माँ बाप को कभी खुश करने की कोशिश नहीं की। आज वो बिस्तरों में छुप छुप कर रोते हैं, आज वो तन्हाइयों में पछताते हैं, आज वो अपने आप को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जो गलती उनसे हुई वो गलती खुदा के लिए आप न करें। आप अपने माँ बाप से माफी मांगे, उन्हें राजी करें, उन्हें टाइम दे, उन्हें वक्त दे, उनकी खुशियों के लिए हर कड़वा घूंट पी ले, लेकिन उनको कभी नाराज न करें। अल्लाह के रसूल मस्जिद के कोने में बैठ करके रो रहे, साहबा दौड़ पड़े, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे, आपके रोने की वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं, अच्छा हिजरत हुजूर ने 53 साल की उम्र में की है ना, 53 साल, इसका मतलब ये वाकया 53 साल के बाद क्या, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र अब 53 साल के ऊपर पहुंच गई है और उस वक्त हुजूर माँ को याद करके रो रहे। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं आप? सरकार फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। हुजूर फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। जैसी हजरत आमिना का नाम याद, वो आमिना किसी का बेटा वली, किसी का बेटा गौस, किसी का बेटा कुतुब, आमिना का बेटा महबूब खुदा। यहां सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग कहते हैं ये सुन्नी उलमा गैर सुन्नियों से लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं? सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिस नबी ने हमारी मां के कदमों के नीचे जन्नत रखी है ना, इन लोगों ने जो गैर सुन्नी है मेरे नबी की मां पे कुफ्र का फतवा दिया और कहा कि नबी की मां काफिरा थी, नबी के बाप काफिर थे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ इतनी बात कि जो नबी के माँ बाप को काफिर कहें, हम उनको इमाम कैसे बनाएं, उनसे रिश्तेदारियां कैसे करें, उनके पीछे नमाजें कैसे पढ़ें, उनके पीछे खड़े कैसे हों? हम दाढ़ियां नहीं देखेंगे ना, हम टोपियां नहीं देखेंगे, हम कलम से लिखे हुए अल्फाज भी तो देखेंगे, किताबों में लिखे हुए सबूत भी तो देखेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़ने से पहले देख लिया करो नबी के माँ बाप को काफिर कहने वाला इमाम है या नबी के माँ बाप पे कुर्बान होने वाला इमाम है। इसलिए कि शफात आपको भी लेनी है, शफात मुझे भी लेनी है। क़यामत के दिन अगर तुम नबी से शफात की भीख मांगने के लिए गए और हुजूर ने कह दिया जो मेरी माँ को काफिर कहता था तो उसके पीछे नमाज पढ़ता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपके ईमान पर छोड़ना चाहता हूं। हुजूर मस्जिद के कोने में बैठ कर रोते हैं और सरकार से पूछा कि हुजूर क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। साहबा सब मिल के रोने लगे, हुजूर के साथ रोने में शामिल हो गए। हुजूर की अम्मी याद आई है, आज नबी को अपनी वालदा याद आई, माँ याद आई है नबी को। फिर रोते रोते हुजूर अलैहिस्सलाम को कुछ इफाका होता है तो सरकार अपने सहाबा से कहते हैं ऐ मेरे सहाबा, इस वक्त मेरी माँ हजरत आमिना हयात होती तो क्या होता, कैसा होता, क्या हाल होता? सहाबा कहते हुजूर क्या होता? आका फरमाते मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी अम्मी मुझे आवाज देती मोहम्मद इधर आओ, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मेरी मां मुझे आवाज देती। सरकार फरमाते मैं क्या करता? साहबा ने कहा क्या करते? हुजूर फरमाते मैं नमाज को छोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी मां की बारगाह में पहुंच। ये मां है, ये मां का मर्तबा है। लेकिन आज मेरा जवान कैरम छोड़ करके मां के पास आने के लिए तैयार, मोबाइल का गेम छोड़ के अपनी माँ के पास, बाप के पास आने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर फरमाते जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा। याद रखना, कितने भी बड़े मनसब पे फाइज हो जाओ, माँ बाप से तुम कभी बेनियाज नहीं हो सकते।
जनाब मूसा से अल्लाह ने कहा था मूसा जरा संभल कर आना। अर्ज की मौला तूर पर तो हमेशा आता हूं, पहली बार तो नहीं आया। इरशाद हुआ जब तुम घर से निकलते थे तो मां आंचल पसार के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे मूसा की तबीयत में गुस्सा और जलाल ज्यादा है, अगर तुझसे कलाम करते हुए आवाज ऊंची हो जाए तो तू दरगुजर कर देना, दरगुजर कर देना, आवाज ऊंची हो जाए तो। मूसा अब तेरे पीछे दुआ करने वाली मां नहीं रही, इसलिए कहा जा रहा है जरा संभल कर आना। अल्लाह के कलीम को कहा जाता है पीठ के पीछे दुआ करने वाली मां अब तेरे घर में नहीं है तो जरा संभल कर आना। गौर तो करें आप, नबी से कहा जा रहा है मां की दुआ क्या है। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, बद्दुआ करे, तन्हा मां दुआ करे, अल्लाह मां की दुआ कबूल करे, सबकी बद्दुआ रद्द कर दे। और तन्हा मां बद्दुआ करे और पूरी दुनिया मिलकर दुआ करे तो अल्लाह सबकी दुआ रद्द कर दे, मां की बद्दुआ कबूल करे। एक दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम जंगल में चल रहे, चलते चलते थक गए, चलते चलते थक गए। अल्लाह से कहते मौला थक गया हूं, सवारी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया एक मेरा बंदा है उससे जाकर कहो। हजरत मूसा गए, उससे कहा मेरे पास सवारी नहीं है। उसने दुआ की अल्लाह बादल जमीन पे भेज ताकि मैं तेरे इस बंदे के लिए सवारी का इंतजाम करूं। बादल जमीन पे उतर आया, उसने कहा जनाब चढ़िए और बादल पे चढ़ करके जहां जाना चाहते जाइए। हजरत मूसा बादल पे सवार हो गए, बादल चल पड़ा। और इसकी मौला कितना नेक बंदा ये, इसकी दुआ से बादल जमीन पे आया। इरशाद हुआ मूसा कोई अमल ही नहीं है इसका, ये नेक नहीं है जिसको तू नेक समझ रहा है। फिर मौला इसकी दुआ की इतनी अहमियत। इरशाद हुआ उसने तो बादल बुलाया, अगर आसमान भी जमीन पे बुलाने की दुआ करता तो हम आसमान को भी जमीन पे उतार देते। अर्ज की जब ये नेक नहीं है, इतना नेक नहीं है तो इसकी दुआ की अहमियत क्यों है? कि इसकी नेकी की वजह से नहीं, ये हमेशा अपनी मां की खिदमत करता था और मां को खुश कर दिया था। मां ने मरते मरते कहा अल्लाह इसने मेरी खिदमत का हक अदा कर दिया, ये जब भी तुझसे जो दुआ करे तो इसकी हर दुआ को कबूल कर लेना। इसकी मां की दुआ की बरकत है, इसकी मां की दुआ की नेकी कुछ नहीं है ज्यादा, इसके पास मां की दुआ की बरकत है। हुजूर फरमाते हैं जो मां बाप की नाफरमानी करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे, बल्कि जिससे मां बाप नाराज हो वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, शहीद होगा तो भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है अगर कोई शहीद हो जाए ना, शहीद और माँ बाप या दोनों में से कोई एक नाराज हो तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, मगर चूंकि वो शहीद हुआ है तो जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम आराफ है, वहां रखा जाएगा। फिर अल्लाह उसके माँ बाप को पहले राजी करेगा, जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे उस शहीद को जन्नत नहीं मिलेगी। सोचो शहीद होकर भी माँ बाप की रजा के बगैर जन्नत नहीं मिलती, तो हमें अल्लाह अकबर सोचिए तो सही। और अपनी गुफ्तगू को एंड पर पहुंचाने के लिए एक बात आपसे कहूं यार, जो माँ बाप का गुस्ताख हो, तवज्जो आपकी, ध्यान है आपका, है जब माँ बाप का कोई गुस्ताख हो, कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, हज करके, ज़कात दे के, शहीद होकर भी माँ बाप की गुस्ताखी की वजह से जन्नत में नहीं जा रहा है, तो जो रसूल पाक का गुस्ताख हो वो कलमा पढ़ के जन्नत में कैसे जा सकता है?